we had discussed about, hope all of you have started with the practical files. Yes? Students? Students? Yes, ma'am. Okay, good. So, any problem in making the practical files? You know now, one side it should be white and the other side it should be ruled. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in the white sheet, you have to draw, make all the necessary diagrams of the SD curve, right? And you also have to mention about the Siddon's classification. Am I clear, students? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Today's class is to make you more clear about the Faraday current. Okay, about the Faraday current. Clear, students? Yes, ma'am. My screen is visible to you all. Yes, ma'am, it is. So, we will be studying about the nature of Faraday currents, therapeutic and physiological effects of Faraday currents, technique of application, indication and contraindication, and clinical application of Faraday current and precaution and dangers. Okay. So how will you define Faraday current? See, it is a short duration interrupted current with the pulse duration of 0.1 and 1 millisecond and a frequency of 30 to 100 hertz. Okay, it is a four things you have to remember in this. First, it is a short duration interrupted current. ठीक है, pulse duration कितनी है 0.1 and 1 millisecond, frequency कितनी है 30 to 100 hertz. Clear? Now we're talking about the waveform. In the waveform, it is an asymmetrical alternating current. It is biphasic, asymmetrical, unbalanced, and spiked. Now, what do you mean by the term unbalanced? About galvanic, Faraday, we were not able to discuss about unbalance. But unbalance is one of the peculiar thing about the Faraday current. See, unbalance means this: when in the positive and the negative, same amount of pulse duration is not going. So this kind of a current is unbalanced. Am I clear? You have studied about Yes, ma'am. equations, right? In which left hand side is equal to right hand side, right? Similarly, when we talk about this graph, the positive should be equal to the negative. So the peculiarity about Faraday current as compared to interrupted galvanic current is that in the Faraday current it is unbalanced, okay, and it is always spiked in the positive side. Clear, students? Are you all there? Yes, ma'am. Ritik? Yes, Okay. ma'am. So in the positive duration, it is short duration, high amplitude and spike, whereas the negative portion is long duration, low amplitude and curved. Clear? This much is clear to everybody? Yes, ma'am. Now, this is very important thing. The Faraday, here they are mentioning that they are always searched for treatment purposes. Why they are searched? To produce near normal tetanic like contraction and relaxation of muscle. See,
बाय नाउ वी हैव स्टडीड कि हम फैराडे करंट इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि वो टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन देता है, तो मसल का फटीग देता है. करेक्ट? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है. लेकिन देयर इज अ थिंग which is being established and which is the search Faradic. Okay, just give me a second, students. Yes, students. Where were we? Now I am audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. हाँ, तो वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास कि एक फैराडे करंट होता है, लेकिन हम फैराडे करंट नहीं देते. क्यों नहीं देते? क्योंकि वो टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, और अगर वो टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वो मसल का Muscle फटीग fatigue कर देगा. cause करेगा. ठीक है ना? इसीलिए एक मॉडिफिकेशन हुई करंट में. क्या मॉडिफिकेशन हुई? सर्ज फैराडिक. सर्ज फैराडिक. ओके. अब सर्ज फैराडिक ने क्या किया? It helps in treatment purposes to produce muscle contraction which is like tetanic but इतना ज्यादा नहीं होता. क्यों? Because it is being followed by muscle relaxation. Clear, students? देखो, do you remember that YouTube video जिसमें I told you what is tetanic contraction? Everybody remember that? Yes, Yes, ma'am. students. है ना? तो अब उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फटीग नहीं होगा, तो इसलिए हम उसको सर्ज फैराडिक कर देते हैं. तो अगर हम सर्ज फैराडिक कर देते हैं तो रिलैक्सेशन के बाउट आते हैं. देखो, आप किसी का पूरा सब कुछ तो नहीं चेंज कर सकते ना. यू कैन नॉट चेंज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैराडिक करंट. इट इज जस्ट you are giving a current, a surging mechanism, so that there is gradual increase and decrease in the peak of the intensity. If there is gradual increase and decrease in the peak of the intensity, that will also cause muscle ka relaxation. Okay, okay. Therefore, in treatment purposes we use surge Faradic. Clear, students? I will ask you, Yes, beta. ma'am. नहीं समझ में आए तो पूछ. नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं हो रही? ओके. अब सर्जेस क्या होते हैं? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें क्या करते हैं सर्जेस में, कि देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द पीक इंटेंसिटी. ठीक है. सो दीज आर एडजस्टेड फ्रॉम 2 to 5 second surge continuously or by regularly selecting frequencies from 6 to 30 surge per minute. ठीक है. तो अब करते क्या है हम, कि हम ऐसा करंट बनाते हैं जिसमें now you are lucky ones because now everything in new modalities it is all in the modality. Okay. Earlier 10, 15 years back we had to set each and every Ma'am, Ma'am, your voice is breaking. knob. Ma'am, your voice is breaking, ma'am. Okay, but you should know how from here, from where it all has come. Right. So
what is there that the intensity of this increase gradually and each impulse reaching. I will change my location. मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत. एक मिनट बेटा, आई एम चेंजिंग माय लोकेशन, जस्ट वेट फॉर 2 minutes. Now I am audible. Ma'am, voice is breaking a lot, ma'am. अभी भी I am not audible. Yes, Kajal, am I audible? Yes, ma'am. Now your voice is clear. Okay. So can I continue now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So what is happening, beta? In search current, we are they are increasing gradually. Okay. So when it is increasing gradually, each impulse it reaches a peak value. Okay. Then after reaching the peak value that is greater than the preceding one, then it falls either suddenly और gradually. इसका मतलब अगर ये आपका ग्राफ है और ये पहली है तो ये इतनी गई तो ये इतनी आई तो दूसरी वाली इससे ज्यादा जाएगी और सडनली या ग्रेजुअली नीचे. एम आई क्लियर? तो इससे क्या होगा, एक तो करंट सेंटर्ड नहीं होगा और अगर सेंटर्ड नहीं होगा तो अकोमोडेशन जल्दी नहीं होगी और अगर अकोमोडेशन जल्दी नहीं होगी तो मसल की रिएक्टिविटी बनी रहेगी. सेकेंडली, देयर इज अ रिलैक्सेशन टाइम which is also increasing. अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तब जब वो नीचे आती है तो रिलैक्सेशन टाइम भी तो. yes or no? Yes or no, students? Is clear or not? Is it clear? No, ma'am. No, ma'am. नहीं क्लियर मैम था आपकी वॉइस मेरी. बहुत ब्रेक हो रही है. अच्छा, एक मिनट रुको फिर. Now I am audible. Yes, ma'am. 2 मिनट के लिए तो होती हूँ, फिर नहीं होती. तो जब मैं जैसे ही ना हूं ना वैसे ही जस्ट टेल मी. ओके ओके मैम. ठीक है. अब क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ फैराडिक करंट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ईच सर्च करंट की इंटेंसिटी जो पहले वाला इंपल्स है उससे बढ़ा दी जाती है. अब इससे क्या होती है, दो चीजें होती है. एक, अगर हम जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फिर हम वापस लेके आएंगे तो उतना ज्यादा मसल को रिलैक्सेशन मिलेगा. यस और नो? यस मैम. यस मैम. ठीक है. Yes, ma'am. दूसरी बात हम सेम इंटेंसिटी नहीं दे रहे, हम अलग अलग इंटेंसिटी दे रहे हैं. तो अलग अलग इंटेंसिटी दे रहे हैं तो जो मसल है वो इतनी जल्दी अकोमोडेट भी नहीं होगी. करेक्ट? यस मैम. ठीक है. Yes, ma'am. तो दोनों पर्पस हमारे सॉल्व हो गए, जिसकी वजह से हम फैराडिक करंट नहीं दे रहे थे. इसलिए हमने एक नया काइंड ऑफ करंट फैराडिक करंट से ही निकाला जिसे हम बोलते हैं सर्ज फैराडिक करंट.
Am I clear, students? Then there are surges which can be adjusted from 2 to 5 second surge continuously or by regularly selecting the frequencies. अब आप रेगुलरली जब सिलेक्ट करते हो ना फ्रीक्वेंसीज विच इज ओनली बिटवीन 6 to 30 सर्जेस पर मिनट. क्यों? क्योंकि जब हमने इसको डिफाइन किया था, हमने क्या बोला था इसको डिफाइन करते हुए कि दिस पर्टिकुलर करंट इज frequency of 30 to 100 hertz with a pulse duration of 0.1 and 1 millisecond. Yes or no? ठीक है? Yes, ma'am. अगर हमको बीच में डालना, देखो अगर आपने 6 किया और 5 सेकेंड किया तो 6 5 30 हर्ट्ज आ जाएगा. करेक्ट और नॉट? अभी आपको कितना करना है? 30 to 100 हर्ट्ज के बीच में ही रहना है. अगर आप 100 हर्ट्ज से ज्यादा चले जाते हो तो वो फैराडिक करंट नहीं होता. समझे आप? Yes, समझे ma'am. बेटा? सबको बात समझ में आ गई? हम फैराडिक को सर्ज फैराडिक क्यों करते हैं? देखो हम प्योर फैराडिक नहीं यूज कर सकते. अगर हम प्योर फैराडिक यूज करेंगे तो टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, और अगर टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? मसल का फटीक हो जाएगा. हाँ, मसल का फटीक हो जाएगा. तो जो हमें मोटर यूनिट रिक्रूट करके मसल को रीएजुकेट करना था और मसल को रीट्रेन करना था वो हम नहीं कर सकते. ओके नाउ देर, अब बीच में रेस्ट पीरियड भी देंगे हम, तभी तो पूरी रिलैक्सेशन होगी ना. सो द रेस्ट पीरियड शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 times as long as that of the pulse to give the muscle the sufficient time to recover or regain its normal state. Is it clear to everybody the form of Faradic current, that is surge Faradic? Yes or no? Yes, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, अब कौन सा most comfortable pulse होता है? It is either 0.1 millisecond pulse with a frequency of 70 hertz or 1 millisecond pulse with a frequency of 50 hertz. ठीक है? या तो सबसे कम वाला अच्छा होता है या सबसे ज्यादा वाला पल्स ड्यूरेशन. ठीक है? अगर आप कम वाला पल्स ड्यूरेशन लेते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी टुवर्ड्स द हायर साइड रखनी पड़ेगी, दैट इज अराउंड 70 हर्ट्ज. एंड अगर आप ज्यादा पल्स ड्यूरेशन, बिकॉज इट वर्क्स बिटवीन 0.1 to 1 मिलीसेकंड, करेक्ट? तो अगर आप ज्यादा वाला 1 मिलीसेकंड रखोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज रखनी पड़ेगी. ओके ओके स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ठीक है. अब क्या होता है, हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, अगर हमें टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी 7 हर्ट्ज की चाहिए होती है. ठीक है? लेकिन जो मोस्ट कंफर्टेबल टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज बिटवीन 40 and 80 हर्ट्ज. दैट इज वाई जब हम ज्यादा पल्स ड्यूरेशन लेते हैं तो हम टुवर्ड्स द लोअर साइड वाला फ्रीक्वेंसी लेते हैं विच इज 50 हर्ट्ज. ठीक है? और जब हम कम पल्स ड्यूरेशन लेते हैं तो हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लेते हैं दैट इज 70 हर्ट्ज. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? क्लियर और नॉट? बताओ. इज इट क्लियर? काजल, Yes, खुशबू? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? अगेन Yes, ma'am. इफेक्ट्स ऑफ फैराडे करंट्स ये सेम इफेक्ट्स हैं जो हमने पिछली बार पढ़े थे. ठीक है? नाउ दीज विल बी काउंटेड एज थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स. ठीक है? आस्था इज देयर इन द क्लास. आई हैव नॉट heard from her since morning. Astha, are you there? I can see her. Yes, Astha? Is she speaking? She's not audible to me. Tanishka, is she speaking something, Astha? मैम उसकी आवाज नहीं आ रही है. Okay. Astha,
You are not audible, beta. Please message on the chat box. Okay. So what are the effects? First and the foremost, stimulation of sensory nerves. It is the sensory nerves are stimulated at a very good mark with surge Faraday. Why? Because of the positive short duration. ठीक है. Second, it causes reflex vasodilatation of the superficial blood vessels, which leads to slide erythema. And when it is vasodilatation slide erythema, automatically the superficial sensory receptors which are present on the skin lining would be what? Recruited? Yes. Once they are recruited, they will go to the CNS and say, CNS, please wake up and do the required contraction by the stimulation of the tract. Yes? Yes, students, is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then stimulation of motor nerves. If the current is of sufficient intensity, it will cause contraction of the muscle. क्योंकि जब गया ऊपर सेंसरी उसने बोला तो मोटर ने आके कर दिया contraction. And if a suitable Faraday current is applied to the muscle, it will cause a contraction of the muscle. And अगर बहुत ज़्यादा चला जाता है ना, some patients are very comfortable with high amount of intensity. तो adjacent motor nerves जो होती है ना, adjacent motor units जो होते हैं, वो भी recruit हो जाते हैं. तो neighboring muscles भी कई बार contract होने लग जाती हैं. Like for example, you know what had happened last time when your seniors were practicing, they were not putting the motor the pen electrode on that particular muscle. ठीक है. तो जैसे 2 cases में ऐसे हुआ था, they were stimulating the muscles of the forearm. ठीक है. So that is the flexor compartment of the forearm. ठीक है. तो जब वो flexor compartment of the forearm को कर रहे थे, तो medial epicondyle से common flexor origin भी होता है. ठीक है. So they were putting their pen electrode somewhat here. ठीक है, नियर द medial epicondyle, राइट. तो वहां से फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. जिसके ऊपर वो कर रहे थे वो भी एक स्टूडेंट था, एंड शी हैड फेल्ट सो मच ऑफ फटीग क्योंकि मसल को समझ ही नहीं आ रहा था कि रेडियल डेविएशन पे जाना है या अल्नर डेविएशन पे. आई बात समझ में या नहीं? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. So that is why it is better to put in that particular motor unit. I will tell you each and every muscle का motor unit कहाँ पे होता है, and then if things are good and you are coming to the university, then we will practice also. Okay. Now the character of the response varies with the nature and strength of the stimulus employed and the normal or pathological state of the muscle and the nerve. अगर तो normal muscle हुई तो वो तो अच्छी तरह contraction दिखाएगी, but अगर pathological state of muscle और nerve होगी वो क्या अच्छी तरह दिखाएगी? नहीं दिखाएगी. That will cause less amount of contraction. Is it clear to everybody? Now what happens? अगर पूरा का पूरा contraction होता है, that is the it is 50 times or more, तो टिटैनिक टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है. तो ये मसल फटीग कर देता है. ठीक. लेकिन अगर आपने करंट को सर्च कर दिया, द कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेजुअली इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्ट्रेंथ इन अ मैनर ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, तो फिर मसल फटीग नहीं होता है. आप खुद करके देखना. व्हेन यू विल प्रैक्टिस अमंग योरसेल्फ ना, यू विल सी. अगर आप नॉर्मल फैरेडिक देते हो, सर्च फैरेडिक देते हो, जो जिसको नॉर्मल फैरेडिक देते हो वो दैट यू नो दैट सब्जेक्ट विल ऑटोमेटिकली से मेरी मसल में बहुत फटीक हो रहा है. और ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर किसी को सर्च फैरेडिक देते हो सेम इंटेंसिटी पे, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंफर्टेबिलिटी ऑफ दी सब्जेक्ट, तो वो बोलेगा मुझे फटीक हो ही नहीं रहा, कर लो मेरे ऊपर. ओके ओके स्टूडेंट्स, यस और नो? Yes, ma'am. यस. ठीक है. अब क्या नेक्स्ट होता है? स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व इज ड्यू टू प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन द सेमी परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. अब इसका क्या मतलब हुआ?
अरे भाई कॉन्ट्रैक्शन तो तभी आ रहा है ना जब सोडियम पोटेशियम चैनल खुल रहे हैं। अगर वो खुलेंगे ही नहीं तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होगी कैसे? अगर अगर एक्शन पोटेंशियल जगेगा ही नहीं रेस्टिंग मसल पोटेंशियल से तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं. सो इट विल हैपन व्हेन अ क्रिटिकल excitatory level, the muscle supplied by that particular nerve gets activated to contract. Okay. This is very important thing बेटा. Faradic current कभी भी denervated muscle को stimulate नहीं करेगा. Faradic current सिर्फ उसी को stimulate करेगा जिसमें कुछ sensation होगी. मतलब या तो partial denervation या इनर्वेटेड मसल को ही स्टिमुलेट करेगा. Only and only intermittent galvanic will stimulate the denervated muscle. Okay, so what happens? There is nerve supply to the muscle being treated must be intact because the intensity of the current needed to depolarize the muscle membrane is too great to be comfortably treated by the patient. बेटा है तो वो टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन ही ना. आपने थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे करके बिकॉज ऑफ इट्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ठीक कर दिया, पर जिस मसल में नर्व कर ही नहीं रही सप्लाई वहां पे फैराडिक करंट देना इज नॉट वाइज. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? बताओ बेटा स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ स्वेलिंग एंड पेन. अब क्या हुआ? सेल की परमेबिलिटी चेंज हुई. अगर सेल की परमेबिलिटी चेंज होगी तो फ्लूइड मूवमेंट होगा. फ्लूइड मूवमेंट होगा तो स्वॉलन टिश्यू में लेस फ्लूइड डिस्टेंशन होगी एंड देयर विल बी आर्टेरियल डायलिटेशन. ओके. एंड जब फ्लूइड मूवमेंट होगी तो इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म तो होगा ही. अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म बहुत दोनों होगा तो देयर विल बी वॉशिंग अवे ऑफ मेटाबोलाइट्स. ओके. Yes, Clear? ma'am. नाउ अब केमिकल चेंजेस भी हो ही रहे हैं. अगर केमिकल चेंजेस नहीं होते तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता? ठीक है. सो द आयंस आर आल्सो मूविंग फ्रॉम वन फेस ऑफ द करंट एंड इन द रिवर्स डायरेक्शन. सो और अदर साइड में भी ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है. अगर तो टू फेजेस आर इक्वल सो द केमिकल फॉर्म्ड आर न्यूट्रलाइज्ड है ना, बट यहाँ तो इक्वल होता ही नहीं है. सर्च फैराडे का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इक्वल तो हो ही नहीं रहा ना. वो उसमें जो पॉजिटिव है वो स्पाइक्ड होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, और जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है बेटा? लॉन्ग ड्यूरेशन होता है और कर्व्ड होता है. यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना. तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन तो हो ही नहीं रही, मतलब यहाँ पे आयनिक मूवमेंट हो रही है. इसीलिए बहुत ध्यान से फैराडिक करंट को यूज करना चाहिए. हमने पहले भी पढ़ा था बिकॉज इट कैन लीड टू केमिकल डेंजर्स. यस, दिस यू ऑलरेडी नो ओम्स लॉ. इसकी जरूरत नहीं है. कांस्टेंट वोल्टेज. अब एप्लीकेशन क्या करते हैं? it should have a good general innervation and it is used for both diagnostic and therapeutic objectives. दोनों के लिए होता है. डायग्नोस्टिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइस्थेनिक रिएक्शन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मायोटेनिक रिएक्शन एंड लोकलाइजेशन ऑफ न्यूरोप्रेक्सिया. देखो न्यूरोप्रेक्सिया के केस में हम फैराडिक दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि आधी मसल में नर्व सप्लाई आ रहा है ना. लेकिन न्यूरोंटोमेसिस में हम नहीं दे सकते, और कई केसेस में तो हम एक्सॉन्टोमेसिस में भी नहीं देते, क्योंकि एक्सॉन्टोमेसिस में भी एक्सॉनल ब्रेक हो गया है तो 75% नर्व का सप्लाई मसल को नहीं आ रहा है. क्लियर? अब मायोस्थेनिक रिएक्शन क्या होता है? मसल का रिएक्शन. ठीक है. और मायोटोनिक मसल का कॉन्ट्रैक्शन. तो ये डायग्नोस्टिक ऑब्जेक्टिव हम कहां से करते हैं? फ्रॉम द एचडी कर्व. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना. Then what are the indications? That is the therapeutic effects, right? So the first would be
facilitation of muscle contraction inhibited by pain. So there will be stimulation must be stopped when there is good voluntary action. अब ऐसा नहीं होना चाहिए. अब आपने अगर टेंडन ट्रांसप्लांट के केस में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था और आपने चालू कर दिया फैराडिक करंट देना, ठीक है बेटा. अब आपने फैराडिक करंट देना शुरू हो गया, आपने 1 मंथ तक अच्छे से दिया फैराडिक करंट और अब अच्छा खासा वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, विदाउट स्टिमुलेशन ऑल्सो, ठीक है. तो आपको अब और फैराडिक स्टिमुलेशन नहीं देना चाहिए. फैराडिक स्टिमुलेशन आपको तभी देना चाहिए जब आपको लगता है कि एक्टिवली पेशेंट ग्रेड 3 में इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर मसल. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? समझ आया या नहीं? अगर पेशेंट वॉलेंटरली ग्रेड 3 में सपोज रिस्ट का फ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है, उसका फ्लेक्सर टेंडन ट्रांसप्लांट हुआ था, आपने फैराडिक स्टिमुलेशन दिया, बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, अब वो एक्टिवली कर पा रहा है, तो आपको और फैराडिक स्टिमुलेशन नहीं देना चाहिए. जस्ट बिकॉज कि उसको पेन नहीं हो रहा तो आप उसको देते रहो, तो इट इज ऑफ नो वर्थ टू द पेशेंट. Is it clear, students? Are you all there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No reply. Yes. Clear हुआ या नहीं? आलिया, आस्था, अल्फिया, अनीशा, रोबा, चारू, चेतना, छवि, ma'am. दिवांश, डिम्पी, हेरा, काजल, क्लियर हो रहा है नहीं? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. अब मसल रीएजुकेशन में क्या हो गया? मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नीडेड टू रिस्टोर द सेंस ऑफ मूवमेंट, राइट? अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको दिख नहीं रहा ना, तो फैराडिक देना बंद कर दो प्लीज. हो सकता है उस नर्व में, उस मसल, उस पर्टिकुलर मसल में नर्व का सप्लाई नहीं हो रहा. ओके, सो देयरफॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको दिख रहा है तभी आप मसल रीएजुकेशन के लिए फैराडिक करंट यूज करो, क्योंकि ब्रेन विल ओनली अप्रिशिएट द मूवमेंट, नॉट द मसल एक्शन. तो आपको करेक्ट मसल एक्शन दिखना चाहिए. अब मेरी बात समझे? सपोज नहीं आई होगी, देखो यहाँ पे ना abductor pollicis, my hand is visible to you all students? No, ma'am. नहीं. No, ma'am. अब Yes, ma'am. Half दिख रहा है. नहीं, मुझे यही देखना है सिर्फ, abductor pollicis longus देखना Yes, है. ma'am. दिख रहा है. ठीक है, ये abductor pollicis longus है, ये पेशेंट का नहीं चल रहा है, ठीक है. आपने किया बट सिर्फ 1+ आ रहा है, आपको सिर्फ मिनिमल कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है एमएमटी से, ठीक है. सो यू डिसाइड कि अब आप इसमें ना फैराडिक करंट दोगे, ठीक है. अब आपने इस पे पेन इलेक्ट्रोड देना शुरू किया और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है दैट इज पैड इलेक्ट्रोड, वो आपने यहाँ पे रख दिया या आपने ये लेटरल एपिकॉन्डाइल पे रख लिया, आपकी मर्जी है, ठीक है. तो आपने यहाँ पे पेन इलेक्ट्रोड रखा, तो आपने जब यहाँ पे पेन इलेक्ट्रोड रखा ये सोचते हुए कि ये abductor pollicis longus का टेंडन है, बट कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है ये सारा ओपोनेंस का, फ्लेक्शन का, एक्सटेंशन का, ठीक है, ये सारे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं. आपने 2 बार कर लिया, 3 बार कर दिया, स्टॉप इट. हो सकता है या तो 2 चीजें हो सकती है, या तो उस मसल में वो नर्व सप्लाई है ही नहीं, यानी कि मीडियल नर्व abductor pollicis longus को सप्लाई कर ही नहीं रही, ठीक है. या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है, आप करेक्टली नहीं पोजीशन कर, तो आप करना बंद कर दो, क्योंकि ब्रेन तो अप्रिशिएट करेगी मूवमेंट, लेकिन आपका काम है उस पर्टिकुलर मसल को रीएजुकेट करना. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. आप समझे, 2 चीजें होती है, एक होती है मूवमेंट. आप किसी भी बॉडी पार्ट पे इलेक्ट्रोड लगा दोगे तो मूवमेंट तो होगी, बिकॉज देर आर 1000+ मसल्स, राइट, ठीक है. तो मूवमेंट तो होगी, लेकिन आपका काम है इसको यूज करने का फॉर दी मसल रीएजुकेशन. इज इट क्लियर? अगर आप मसल को रीएजुकेट कर पा रहे हो तो आपका फॉर दी एक्टिविटी फॉर विच यू आर डूइंग इट, इट इज you are fulfilling it.
यू आर अंडरस्टैंडिंग? समझ आ गया ना बेटा? Yes, ma'am. ठीक है. Training a new muscle action after tendon transplantation, what happens? Muscle may be required to perform a different action from that previously carried out. तो क्या होता है जब हम सर्ज पैरेटिक कारण देते हैं, the patient must voluntarily contract it. अगर पेशेंट उसको वॉलेंटरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता और असेस नहीं करता वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन को, तो कोई फायदा नहीं है. क्योंकि अगर एक्सटेंसर का टेंडन फ्लेक्शन पे आया और आपने वॉलेंटरली पेशेंट से फ्लेक्शन नहीं कराया, तो होमोलोकस पे यानी कि ब्रेन पे सही तरीके से उसकी मैपिंग नहीं हो. और अगर ब्रेन पे सही तरीके से मैपिंग नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन कह रहा है उसको कि ये पर्टिकुलर मसल का एक्शन है एक्सटेंसर, तो एक्सटेंशन पे जाओ, लेकिन आप उस पर्टिकुलर टेंडन पे दे रहे हो ताकि फ्लेक्शन आए. तो कितना कंफ्यूजन हो गया ना? यस और नो? हुआ कि नहीं? मैम एक बार और रिपीट. Yes. देखो, फ्लेक्सर इंजरी हुई हैंड की, ठीक है, तो हैंड की, ठीक है, तो एक्सटेंसर टेंडन ट्रांसप्लांट हुआ. अब एक्सटेंसर टेंडन को ब्रेन में आदत है एक्सटेंशन करने की, ठीक है, लेकिन आप क्या करा रहे हो? आपको चाहिए कि अब वो फ्लेक्शन करने लग जाए. क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है बेटा, हमारी जो 90% एक्टिविटीज करते हैं दैट इज फ्लेक्शन ऑफ द हैंड, है ना? कोई हम एक्सटेंशन में करते हैं ज्यादा एक्टिविटीज, और हमको पेशेंट को क्या करना है? हमको पेशेंट को फंक्शनली इंडिपेंडेंट करना है. यस? यस और नो? Yes. ठीक है. Yes. लेकिन Yes, ma'am. एक्सटेंसर टेंडन की मैपिंग ब्रेन में क्या है कि एक्सटेंशन करने की. तो आप जब ट्रेन कर रहे हो न्यू मसल एक्शन, तो आपको पेशेंट को बोलना पड़ेगा अब आप फ्लेक्शन कीजिए, रिलैक्स कीजिए, फ्लेक्शन कीजिए, रिलैक्स कीजिए. अब इसमें दो चीजें होती है. जो आपने सेट किया है ना, जब वहां पे इंटेंसिटी आ रही है तभी आप पेशेंट को बोलो कॉन्ट्रैक्ट करो, और जब वहां पे आपने रेस्ट पीरियड दिया 3 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स का, तो आप पेशेंट को बोलो कि आप रेस्ट करो. आपको उसके साथ जाना पड़ेगा जो मशीन करा रही है, तभी ब्रेन के अंदर मैपिंग होगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Still, Yes. there are many therapists, they have experience of 10-12 years. They are not able to train a new muscle action in the patients. Still, I know them because it is a very, very patient friendly and very, very patient task for a therapist also. You have to keep a stopwatch also with you for the amount of the intensity you have given for the contraction and the amount of intensity you have given for the relaxation. So you have to be very, very alert in that perspective. You are understanding, students? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, what is nerve damage? So after the nerve damage, you should not go with the Faradic current. If the action has been modified after the Valerian degeneration, then you can go with the Faradic current. खाली डिनर वेटेड में कभी फैरेडिक करंट के साथ नहीं जाना. अब इंप्रूवमेंट ऑफ वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसमें क्या होता है बेटा, हम अभी डिस्कस भी करेंगे. डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है लाइक फैराडिज्म अंडर प्रेशर, फैराडिक फुट बाथ. तो क्या होता है, एडीमा और ग्रेविटेशनल अल्सर्स में क्या होता है, द वीनस एंड द लिम्फेटिक रिटर्न शुड बी इनकरेज. तो क्या होता है, हम पंपिंग एक्शन करते हैं उसके ऑल्टरनेट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के. जहां पे अल्सर हुआ है वहां पे तो आप नहीं दे सकते ना, वहां पे आप नहीं दे सकते, लेकिन आप अराउंड के मसल्स को पे अगर सर्ज पैराडिक दे देते हो तो क्या होगा, इंप्रूवमेंट तो होगी ना वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज की. वंस उसकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी तो क्या होगा, दैट विल enhance the improvement in the venous and the lymphatic drainage.
Okay. Prevention and loosening of additions. क्या होता है? After effusions, additions are liable to form. ठीक है. तो अब जब additions form हो जाते हैं, they can also be stretched. How? By loosening the muscle contraction. They can be loosened by muscle contraction. For example, there is a common contracture which happens अगर burn हो जाए hand का, ठीक है, तो यहाँ पे ना पूरा का पूरा जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है ना, माय हैंड इज विजिबल ना बेटा? Yes, ma'am. Yes, Yes. तो ma'am. ये जो पूरा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म में चला जाता है. तो आप पैसिव मूवमेंट और एक्टिव असिस्टेड तो दोगे ही, ठीक है. उसके बाद जब द सुपरफिशियल टिश्यू इज इंटैक्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, अगर आप थोड़ा सा मसल कॉन्ट्रैक्शन देना शुरू कर दोगे तो पंपिंग एक्शन आ जाएगा. पंपिंग एक्शन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो एडिशंस है वो ब्रेक हो जाएंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. Yes, पेनफुल ma'am. नी सिंड्रोम में जरूर यूज होता है. क्या होता है? आफ्टर ट्रॉमा, एकदम ट्रॉमा होके आता है ना, बट क्या होता है मोस्टली थेरेपिस्ट क्या करते हैं, अगर ट्रॉमा करके आता है ना, टेंस दे देते हैं. ठीक है, तो टेंस भी अच्छा मशीन है पेन रिलीफ में, मना नहीं कर रहे, बट क्या होता है फैराडिक करंट अगर दे दो ना, जो कि it is not normally used, the first thing usually Asian therapists and the ongoing which are practicing very well, they also say अगर री-एजुकेशन करना है, मसल एक्शन करना है, तभी फैराडिक करो. नहीं, लेकिन पेनफुल नी सिंड्रोम में भी होता है. क्यों? क्योंकि ये आपका मसल का कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है विद इनहिबिशन ऑफ पेन. So there will be some amount of pain relief and that won't lead to any muscle atrophy. टेंस क्या करता है? टेंस खाली पेन का रिलीफ करता है. ओके, समझ आया? Yes. नहीं? Yes, ma'am. नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशन स्किन लेजन्स. सो अब आपको इसका रीजन पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि स्किन लेजन्स में क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर स्किन पे कोई लेजन है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि हैंड का बर्न हुआ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्चर हो गया, अगर जब आपका सुपरफिशियल लेयर ठीक हो जाएगा उसके बाद आप फैराडिक देना, उससे पहले मत देना. क्योंकि अगर आप उससे पहले देने लग जाओगे ना, तो ये फैराडिक की वो है, प्रॉपर्टी है कि जब आप उसको दोगे और छोड़ोगे, वैसे मोस्ट ऑफ द करंट्स की होती है कि देयर विल बी अक्यूमुलेशन ऑफ दैट करंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे स्किन का लिजन होता है. सो देयरफॉर इट इज नॉट वाइज टू गिव करंट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे स्किन का लिजन हुआ है. ठीक है. सोरियासिस में, टीनिया में, एक्जिमा में, एक्यूट इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशंस में, थ्रोम्बोसिस में. बेटा थ्रोम्बोसिस में कभी नहीं देना, क्योंकि क्या करेगा, ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन देगा, जो क्लॉट है ना वो वहां से भाग के कहीं और चला जाएगा, and if it will run and go somewhere else, it can also go to the brain and cause stroke also. Okay. देन लॉस ऑफ सेंसेशन में तो बिल्कुल भी मत देना, और कैंसर पेशेंट में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैंसर पेशेंट में क्या होता है, देयर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स. ठीक है, अब आपने अगर फैराडिक करंट दे दिया उसमें, तो वो जो सेल्स होंगी वो और मल्टीप्लाई हो जाएंगी और दूसरी जगह पे चली जाएंगी. ओके. कार्डियक पेसमेकर में तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इट विल बी adhering with the impulses which is put forward by the pacemaker. और metals में भी same reason. Correct? Now students, are you all there? Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So there is methods of application. It is unipolar or bipolar. There are two techniques of application: group muscle stimulation and motor point stimulation. ग्रुप मसल स्टिमुलेशन मतलब जैसे कि आपकी दो बड़ी बड़ी ग्रुप्स है लोअर लिम्ब में, दैट इज आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. ये सारी ग्रुप मसल्स है. करेक्ट और नॉट? एंटीरियर Yes, ma'am. कंपार्टमेंट में आती है आपकी क्वाड्रिसेप्स, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आती है आपकी क्या? हैमस्ट्रिंग्स. यस और नो? Hamstrings. हाँ. So the active electrode and the passive electrode will be kept stationary. इसका मतलब group muscle stimulation में you will not use pen electrode. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और motor point stimulation में the black one would be the pen electrode, that is the active one,
and the inactive one or the passive electrode would be the red one which would be placed somewhere, और motor point में जो दूसरा होगा वो हिलता रहेगा according to the motor unit stimulation. ठीक है बेटा? Now these are various motor points of the, ये खाली एक्सिलरी नर्व का बोला है बट आगे सारे देखो. एक्सिलरी नर्व को कौन सी मसल को सप्लाई करती है? डेल्टॉइड को. ठीक है. अब डेल्टॉइड में भी 3 फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर फाइबर्स, पोस्टीरियर फाइबर्स और मिडिल फाइबर्स. यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है. ये एंटीरियर है. दिस इज एंटीरियर पोजिशन ऑफ द आर्म एंड दिस इज पोस्टीरियर पोजिशन. ठीक है. जब हम एंटीरियर पार्ट करते हैं तो डेल्टॉइड यहाँ पे आती है एंटीरियरली. एंटीरियर एनाटॉमिकल पोजीशन है विद द पाम फेसिंग अपवर्ड. ओके. एंड प्रेफरेबली द पेशेंट इज इन सुपाइन लाइन. ओके. यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन सिटिंग, बट सिटिंग में क्या होता है, जनरली द पेशेंट इज नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि आप जो पैसिव इलेक्ट्रोड है, अब डेल्टॉइड को स्टिमुलेट करोगे तो पैसिव इलेक्ट्रोड कहाँ रखोगे? C5 C6 पे रखोगे, है ना? और पेन इलेक्ट्रोड रखोगे यहाँ पे या यहाँ पे. करेक्ट? Yes, ma'am. नाउ मस्कुलोक्यूटेनियस का मोटर पॉइंट कहाँ है? ये एंटीरियर एस्पेक्ट है. मस्कुलोक्यूटेनियस एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म को देती है. तो ये होगी कोरिकोब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस. आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो, स्पेशली फॉर बाइसेप्स ब्रेकियाई. फोरआर्म सुपिनेटेड होती है और एल्बो का फ्लेक्शन कराओ. जब आप एल्बो का फ्लेक्शन कराओगे यहाँ पे आपको बाइसेप्स दिखेगी. द मिड पॉइंट जो मसल बेली का होता है वही बाइसेप्स ब्रेकियाई का मोटर पॉइंट होता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Students, are you there? Yes, ma'am. हाँ. अब मोटर पॉइंट ऑफ द रेडियल नर्व. रेडियल नर्व कहाँ सप्लाई करती है? मोस्टली वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म को स्टिमुलेट करती है. ठीक है. तो अगर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में देखें तो ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं. दैट इज द लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड द मीडियल हेड. तो वहां की ये 3 पोजिशंस हो गई. ठीक है. अगर आप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म देखते हो तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, extensor digiti minimi, extensor carpi unlaris और supinator. ठीक है. लेकिन एंटीरियरली एक और मसल होती है जिसको बोलते हैं हम ब्रेकियो रेडियालिस. दैट इज ऑल्सो बीइंग सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व विच इज फाउंड नियर द लेटरल एपिकॉन्डाइल. Clear, students? Yes, Yes. ma'am. In your practical files, you all have to draw this motor points कि कहाँ पे रेडियल नर्व होता है, कहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस होती है, कहाँ पे एक्सिलरी नर्व होती है. ओके. अब मोटर पॉइंट्स ऑफ द मीडियन नर्व. मीडियन नर्व को कौन कौन सप्लाई करता है? लम्ब्राइकल्स फर्स्ट एंड सेकंड, ओपोनेंस पॉलिसिस, abductor pollicis brevis and flexor pollicis brevis. This is the short form of to see the motor points of the median nerve. Okay. In the hand बेटा, in the hand. उसके अलावा भी जो मीडियन नर्व है वो पामरस लॉन्गस को सप्लाई करती है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस के आधे पार्ट को सप्लाई करती है, प्रोनेटर टिरस को सप्लाई करती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस को सप्लाई करती है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को करती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल फ्लेक्सस को करती है. Correct, students? Yes? Yes. Yes, ma'am. Draw beautiful diagrams in your practical files, okay? Now, because and keep yourself these practical files all through till you know, get good position as a practitioner. This will help you, okay? Because electrotherapy is one of the pioneered things. As soon as the patient comes, agar electrotherapeutic modality is not given to the patient, patient will never feel satisfactory. आप जितनी मर्जी exercise करा दो, both electrotherapy, exercise therapy, both of them work together very well. ठीक है.
बट 50-50% दोनों का होना चाहिए टू मेक अ गुड प्रोटोकॉल. ओके ओके स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then the motor points of the ulnar nerve, there is flexor carpi ulnaris, flexor digitorum profundus के medial fibers, abductor digiti minimi, flexor and opponens digiti minimi, third and fourth lumbrical, flexor pollicis brevis. ये सारी तो हमें एंटीरियरली मिलती हैं, ठीक है. एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द हैंड और पाम और कंपार्टमेंट ऑफ द हैंड. अब पीछे की तरफ क्या मिलती है? पीछे की तरफ हमें सिर्फ अडक्टर पॉलिसिस और इंट्रोशियाई मिलते हैं. सारे इंट्रोशियाई जो होते हैं वो अल्नर नर्व करती है सप्लाई. ओके, अब ये हो गई बेटा हमारा अपर लिम्ब का फिनिश. ये हो गई फेमोरल नर्व. फेमोरल नर्व में जो मेजर मसल्स होती हैं वो जो फेमोरल नर्व है वो किस किस को सप्लाई करती है? वास्टस लेटरालिस, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियालिस और सार्टोरियस, यानी कि तीनों क्वाड्रिसेप्स और सार्टोरियस. 3 quadriceps. ओके, लेटरालिस, मीडियालिस और रेक्टस फेमोरिस एज वेल एज सार्टोरियस. इन्हीं के मोटर पॉइंट मिल सकते हैं. एम आई क्लियर? वास्टस इंटरमीडियस को भी फेमोरल नर्व ही करती है बट उसका मोटर पॉइंट लोकेट करना डिफिकल्ट होता है. पोस्टीरियरली हमें क्या मिलता है? शियाटिक नर्व से जो सप्लाई होता है हैमस्ट्रिंग्स, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडनोसस. टिबियल नर्व से, टिबियल नर्व हमें मिलती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग पे या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग पे. तो यहाँ पे आता है गैस्ट्रोनीमस का लेटरल हेड, मीडियल हेड, सोलियस, फ्लेक्सर डिस्टोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हाल्सस लॉन्गस और टिबियालिस पोस्टीरियर. सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है वो हमें हेल्प करती है इवर्जन में, दैट इज पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस. देन वी हैव डीप पेरोनियल नर्व, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती है, दैट इज एक्सटेंसर डिस्टोरम लॉन्गस, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हाल्सस लॉन्गस और एक्सटेंसर डिस्टोरम ब्रेविस व्हिच हेल्प इन डॉर्सिफ्लेक्शन. यस यस और नो स्टूडेंट्स? Are you all there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So is it clear to everybody? All the motor points with the action? ठीक है. तो अब आप इसमें क्या होता है जनरली व्हेन यू आर आस्क्ड टू स्टिमुलेट अ पर्टिकुलर मसल, अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन आ गया वेरी गुड. उसके बाद जनरली इट इज बीन आस्क्ड व्हाट इज द ओरिजिन, इंसर्शन एंड नर्व सप्लाई एज वेल एज द एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? At least Yes, ma'am. yes or no? Yes, okay. Now next is the precaution and the danger. अगर skin sensation it is not normal of that particular side जहां पे आपने पैसिव इलेक्ट्रोड डाला है तो आप वहां पे प्लीज मत लगाइए पैसिव इलेक्ट्रोड को. अवॉइड एक्टिव एपिफिजल रीजन्स इन चिल्ड्रन, क्योंकि एपिफिजल रीजन जो एपिफिजल पार्ट होता है बच्चों का वो ग्रोइंग प्लेट का एंड होता है, ठीक है. और वहां पे इट शुड नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ करंट. सिलेक्ट स्टिमुलेशन पैरामीटर्स अप्रोप्रिएट टू द इफेक्ट डिजायर्ड. Inappropriate stimulation parameter may cause muscle damage, reduction in blood flow through the muscle and low frequency muscle fatigue. Appropriate care should be taken to ensure that the level of muscle contraction initiated does not compromise the muscle nor the joint over which it acts. Okay. Patient with a history of epilepsy should be treated at the discretion of the physical therapist. वैसे you should not take patients with epilepsy because बेटा एपिलेप्सी में भी जो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो टेटानिक कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड इट इज इन दी पेरिफेरल लिम्स. ठीक है. अब क्या मेजर मैं आपको बता रही हूँ कि इसको नहीं लेना चाहिए बिकॉज ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो क्या थिंग है कि सॉरी कि जो फैरेटिक करंट है उसकी प्रॉपर्टी तो टेटानिक कॉन्ट्रैक्शन की है ना. वो तो आपने सर्च फैरेटिक कर दिया और उसको रिलैक्सेशन अप्रोप्रिएट अमाउंट की दी, बट कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी कैन इन्फ्लुएंस द आयनिक कॉन्ट्रैक्शन व्हिच इज बिकॉज ऑफ दैट द एपिलेप्सी इज हैपनिंग. यस और नो
Students, Yes, ma'am. Yes, ma'am. are the dangerous burns, especially chemical burns, because of the ionic movement. क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा. पॉजिटिव जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन स्पाइक दे रहा है और जो नेगेटिव है वो लॉन्ग ड्यूरेशन कर्व दे रहा है. देन देयर में भी इलेक्ट्रिक शॉक. करंट जहां भी आएगा वहां इलेक्ट्रिक शॉक तो लग ही सकता है अगर सर्किटिंग पूरी ना हो. ठीक है. एंड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मतलब अगर वाटर कंटेंट पूरा नहीं है तो क्या होगा? आयनिक एक्सचेंज ठीक नहीं होगा, आयनिक परमेबिलिटी ठीक नहीं होगी, सेल की परमेबिलिटी ठीक नहीं होगी, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है. डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर भी हो सकता है. Okay, students, these are some of the references. If you want to go through it, you can go through it. Okay, students, now we go to another very important topic. Is it clear to everybody? Can we have a quick Yes, revision ma'am. of whatever we have studied? Alia, 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 are you there? Okay. Astha, Astha, she is also not मैम there. उसका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है मैम. उसने मैसेज किया था. चैट बॉक्स पे लिख दो आस्था. आस्था के बाद कौन है? अल्फिया, Yes, ma'am. what have we studied? Ma'am, you taught us about Faradic current contraindications, precautions, and muscles re-education and new muscle action. हमें कैसे करना है और degenerative muscles को नहीं देना है हमें. De-innervative muscles को नहीं देना है. और Partially डिनरवेटेड. क्या क्या बोला आपने? डी क्या बोला आपने? de-innervative muscles को हाँ, नहीं देना है. डिनरवेटेड डिनरवेटेड मसल्स को नहीं देना है. नहीं देना. हाँ. इनर्वेटेड और पार्शियली इनर्वेटेड को देना है. और हम ऐसे ही फैराडिक कर देते हैं क्या? नो मैम, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10 to 100 मेगाहर्ट्ज. नहीं, क्या कह मैम रहे हो? सर्च करंट बना के करते 30 हैं. to हाँ, सर्च 30 फैराडिक बना के करते हैं. एग्जैक्टली. अगर हम उसको सर्च फैराडिक बना के नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा अल्फिया? फटीक हो जाएगा मसल. मसल्स फटीग हो जाएगी. मसल फटीक हो जाएगी. करेक्ट. यस मैम, 100 मेगाहर्ट्ज से ऊपर भी नहीं दे सकते. तो कितना कितना दे सकते हैं हम? 30 to 100 मेगाहर्ट्ज तक दे सकते हैं. उससे मेगाहर्ट्ज या हर्ट्ज? हर्ट्ज तक. सॉरी मैम. मेगाहर्ट्ज हर्ट्ज से बड़ा होता है या छोटा होता है? बड़ा होता है मैम. फिर इतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी में तो वो मीडियम फ्रीक्वेंसी नहीं बन जाएगा बेटा. सॉरी क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी तो 1000 से कम होता है ना. मीडियम होता है 1000 से 10,000. यस मैम. ओके अनीशा, व्हाट हैव वी स्टडीड बेटा? Ma'am, we studied about the surge Faradic current. That is a form of Faradic current. Ma'am, फिर उसके बाद select करते हैं frequency from 60 to 30 surge per minute. और फिर rest period देते हैं 2 to 3 times. और मैम प्रैक्टिकली जो मोस्ट कंफर्टेबल होती है हर्ट्ज वो 40 to 80 हर्ट्ज होती है. हम कितना यूज करते हैं? 7 हर्ट्ज. 7 हर्ट्ज में तो टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा बेटा जी. 7 हर्ट्ज में टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा. हमको टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन चाहिए. नो मैम. हमको कैसा चाहिए? मैम टिटैनिक होगी तो फिर फैटिक हो जाएगा. हाँ, तो फिर हम कैसे करेंगे बेटा?
मैम उससे कम लेंगे। कितना कम लेंगे? बताओ। Anisha, you were not there in the class. Anubhav, I was An- there, ma'am. then Anubhav, Anubhav, Aroba, 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 Bhumika, Aroba is there. Bhumika, Bhumika, she is also not there. Charu, यस मैम। मैम हमने इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी पढ़े थे। इंडिकेशंस जैसे मसल री-एजुकेशन and nerve damage, improvement in lymphatic drainage, and adhesions, and knee syndrome, painful knee syndrome. और इसके अंदर क्या होता है? पेनफुल नी सिंड्रोम के अंदर किसी का भी एक्सप्लेनेशन बताओ। छवि इज देयर इन द क्लास। ओके, हाँ बोलो बोलो। मैम पेनफुल नी सिंड्रोम होता है उसमें जो भी ट्रॉमा होता है उसके बाद जब हम देते हैं तो वो मसल को इनहिबिट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे थ्रोम्बोसिस, इन्फ्लेमेशंस, कैंसर्स, मेटालिक इम्प्लांट्स। और चेतना? Yes, ma'am. Ma'am, we studied about effects of Faraday current. Ma'am, there is stimulation of sensory nerves, stimulation of motor nerves, and the Faraday current do not stimulate the denervated nerve muscles. And ma'am, there is reduction of pain and swelling. Ma'am, there are also chemical changes. Yes, ma'am. जिशान? रोहित? Yes, ma'am. तनिष्का? वैष्णवी? वंदना? Yes, ma'am. बताओ। मैम क्या पढ़ा हमने? फॉर्म्स ऑफ करंट पढ़ा, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इफेक्ट्स, डेंजर, एप्लीकेशन, प्रिकॉशन, यही सब हमने आज पढ़ा। मोटर पॉइंट्स नहीं पढ़े मसल्स के? यस मैम, पढ़ा है। पढ़े है ना? क्या पढ़े? Okay, so we have discussed the motor points of the limbs, right? But we have not discussed the motor points of the face. Correct? Correct, Yes, students? Yes, ma'am. So we will come to
the discussion of the motor points of the facial nerve. ठीक है, अब facial nerve में क्या होता है बेटा? Just a second. I wanted to show you also. Anybody of you have वो stimulator with you? किसी के पास stimulator है? No, ma'am. नहीं है। मैम किसी ने देखा? मसल इस मैम है, Excuse मैम me, है, ma'am. स्टिमुलेटर है, हाँ मसल जी। स्टिमुलेटर है। वेरी गुड। तो प्रैक्टिस किया? मैम फोर आर्म पे करा था तो कॉन्ट्रैक्शन आई नहीं थी, लेकिन थंब की आ गई थी इजीली। बेटा अब तो आपको पता चल गया ना यस मैम। कि कहाँ पे मोटर यूनिट है। तो आप इफ यू स्टे नियर टू एनी वन ऑफ योर्स प्लेस, तो आपके पास कॉम्बिनेशन है या सिंगल मसल स्टिमुलेटर है? टेंस का है, टेंस प्लस मसल स्टिमुलेटर 2 चैनल्स के अंदर है। अच्छा, साथ में अल्ट्रासोनिक भी है? नो मैम, नो। सिर्फ टेंस और मसल स्टिमुलेटर है? हाँ मैम, और स्ट्रैप्स वगैरह हमने मैम खरीद लिए थे बाहर से, ऑनलाइन ऑर्डर करा था, तो जिन्होंने हमें प्लेस करा था हमारा ऑर्डर, वही हमको बाकी सारा रिमेनिंग सामान देके गए थे। कैन यू शो मी रोहित योर मशीन बेटा? यस मैम। अभी कैन यू शेयर इट? कैन आई मेक यू द प्रेजेंटर? इज इट ओके विद यू? ओके मैम। यस, यस मैम। मैम जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। I will make you a presenter. Okay, so my point was कि आप try करो, but family members में it is difficult. If you do among your among yourself, then it is easy. Don't you think so? Yes ma'am. Ma'am, Devansh lives nearby my house, so we are trying to just do the experiment by today or day after tomorrow. आराम से कर लो। मैम संडे को हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट। देवांश के ऊपर या मैं अपने ऊपर, दोनों में से किसी एक पे करेंगे। पहले मोटर पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। ओके? ओके मैम। पहले मुझे मशीन दिखाओ। Is it programs are inbuilt or you have to do? I want to see that. I think I have these stuff is not uploaded on Amazon also, है ना? Is it? Can somebody confirm? Ma'am, I'm checking right now. हाँ प्लीज चेक करो, क्योंकि आई थिंक आई हैव ओनली अपलोडेड द आर्टिकल्स, बट आई फेल्ट माई सेल्फ दैट बिफोर द आर्टिकल्स दिस ऑल थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू. So Rohit, No, are ma'am. you? नहीं है ना? हाँ, I will No, share it. ma'am. Don't worry. I will do it today by evening. Rohit, are you doing or shall I start with the motor? हाँ हाँ हमाद, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा? मैम मैं पूछ रहा था मैम, मसल स्टिमुलेटर जो होता है मैम डिवाइस, मैम वो भी फैराडिक करंट ही होता है? बेटा मैम उसमें मैंने फैराडिक भी होता क्लिनिक्स है, में देखा है। उसमें फैराडिक भी होता है, उसमें इंटरमिटेंट गैल्वेनिक भी होता है, उसमें प्लेन गैल्वेनिक भी होता है, उसमें डीसी भी होता है, तीनों वेव फॉर्म्स होंगे. दैट इज व्हाई आई वांटेड रोहित टू शो मी कि हाउ हिज डिवाइस लुक्स लाइक, राइट? मैम I'm sharing मैम मैम I'm logging with my another device. Okay. Because I want to teach you the principles of applications. Okay हमाद, बेटा मसल स्टिमुलेटर में ना दोनों करंट Yes, होते हैं, ma'am. इंटरमिटेंट गैल्वेनिक भी होता है और फैराडिक भी होता है. Okay, क्योंकि ma'am. डिनर्वेटेड मैम वो मसल को शुरू करने के लिए ना हमें इंटरमिटेंट गैल्वेनिक ही यूज करना होता है. लाइक फॉर Okay, एग्जांपल फेस में जब फेशियल नर्व का पाल्सी होता है ना, पेशेंट बेल्स पाल्सी फेशियल पाल्सी के साथ शुरू होता है, तो वी स्टार्ट विद ऑलवेज इंटरमिटेंट गैल्वेनिक. ओके मैम, मैंने फेस पे ही देखा था उनको करते हुए मैम, वो पेन इलेक्ट्रोड से मैम कर रहे थे. तो वो इंटरमिटेंट गैल्वेनिक यूज कर रहे थे, सर्ज फैराडिक यूज कर रहे थे. मैम जब तक तो मैम हमें पता भी नहीं था कि ये सब, हम फर्स्ट ईयर में ही थे मैम, डोंट नो. ओके, जनरली इंटरमिटेंट गैल्वेनिक इज यूज्ड फॉर द फेस. फेस के पॉइंट्स बहुत आसान होते हैं. यहाँ पे होता है ऑसिपिटो फ्रंटालिस, ये होता है कोरिगोटर मैम वन थिंग सुपरफिशियल. मैम, ट्रॉमा में अगर पेन होता है मैम, जैसा आपने पेनफुल नहीं बताया अभी
इंडिकेशंस में हमने पढ़ा था, तो मैम उसमें हम पेन के लिए मैम IFT भी तो दे सकते हैं। हाँ दे सकते हो, IFT भी दे सकते हो, टेंस भी दे सकते हो, पर कई बार क्या होता है, देर इज अनअवेलेबिलिटी, सो डोंट यू नो योर clinic is full of modalities and you have so many patients, okay, so the patient has come to you and he is in so much of trouble, so don't think you will not be able to do a immediate treatment. आप कर सकते हो, आप फैरेटिक थोड़ी देर के लिए लगा दो so that the patient is comfortable. Once the patient is comfortable, then change to IFT or TENS. वो तो चॉइस ऑफ मोडालिटीज हो जाती है ना, IFT और TENS तो बेटा. I'm waiting for Ma'am, I'm just logging in with my phone. Rohit. हाँ, okay. Ma'am, it takes some time. So, ma'am, can you please start at the end of this class? I'll show if it is okay. Okay, yes, because I wanted to teach you how you will receive the patient, how we will start, right? Okay, so these are the motor points of the facial nerve. ठीक है, ये फ्रंटालिस, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई, कोरुगेटर सुपरसिलरी. फ्रंटालिस का एक्शन क्या होता है? ऑल ऑफ यू कैन सी मी, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई का क्या होता है? दिस इज द ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई, यहाँ पे मिलेगा मोटर पॉइंट. ठीक है, दिस इज क्लोजिंग ऑफ द आई. देन कोरुगेटर सुपरसिलरी, हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, देन इन द बक्सिनेटर वी हैव राइजोरस, vaccinator, levator labii superioris, levator labii oris, nasalis, and orbicularis oris, which is closing of the mouth. Then we have here mentalis. ठीक है, these are the various function. Ospitofrontalis, corrugator superciliary, procerus, nasaris, orbicularis oculi, closing of the eye. Levator labii, like blowing of the nostrils. Then buccinator and orbicularis, blowing of the mouth. Zygomaticus major minor, like this. Rhizorus is smiling without showing the teeth. Rhizorus and depressor labii inferioris, smiling with showing the teeth. Levator labii superioris, it's like showing your teeth that you have brushed your teeth. Then dilators of the mouth is rhizorus plus levator labii superioris and depressor. Then orbicularis oris is closing of the mouth. The depressor angula is sad face. Mentalis is this. Platysma is this. Okay, so these are the various motor points of the facial nerve. This is frontalis. Actually यहाँ पे मिलती है corrugator superciliary और यहाँ पे मिलती है occipitofrontalis. It may vary from patient to patient. I would suggest you, Rohit, if you are practicing, take the video so that you know, I will be able to tell you whether you are doing it correctly or incorrectly. To all of you who have the electrical stimulator and practicing, right? Then the orbicularis oris, then rhizorus, then depressor of the lower lip. This is the depressor of the lower lip. This is the facial nerve stimulation. This is upper branch, this is middle branch, this is trunk and the lower branch. At times, you know, you will see if the patient is so much in, you know, it has, if from a long period of time, in ancient times also they used to do group stimulation. यहाँ पे एक active लगा देते थे, यहाँ पे एक पैसिव लगा देते थे और फिर करते थे, तो सारी की सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती थी. बट अब वो बंद कर दिया है. नाउ पीपल यूज द पेन इलेक्ट्रोड फॉर स्टिमुलेशन ऑफ ईच ऑफ द मसल्स. Okay, now what are the motor points of the back? This is for the trapezius upper fibers, trapezius middle fibers, rhomboids, trapezius lower fibers, latissimus dorsi, serratus anterior, teres major and minor, infraspinatus and supraspinatus. Okay, then what are the principle? Receiving the patient, you already know. Greet the patient, introduce yourself, develop a good rapport, provide them a comfortable position, right? Now the case sheet should include name, age, gender, occupation, chief complaints, site, duration of the condition and diagnosis. Here duration of condition is very important क्योंकि वहाँ पे आप Valerian degeneration से you can compare, right?
Then the general contraindication are hyperpyrexia like fever, epilepsy, severe renal and cardiac problems, cardiac pacemaker, severe hypotension and hypertension, infection, pregnant woman, mental implants, mentally retarded patient, mentally upset, malignancy, eyes, anterior aspect of neck and sinus, क्योंकि जुगुलर वेन स्टिमुलेट हो जाती है. ट्रे प्रिपरेशन में क्या करोगे? स्किन रेसिस्टेंस लोअरिंग ट्रे लाइक पिलोज, कॉटन सोप, टॉवल, मैकिंटॉश, किडनी ट्रे, पेट्रोलियम जेली और वैसलीन, यूपिन, शार्पन ब्लंट, क्लिप्स, बाउल ऑफ वाटर. ट्रे प्रिपरेशन में ट्रीटमेंट ट्रे में पिलो, टॉवल, बेडशीट, कॉटन, एडहेसिव टेप्स. व्हाई डू यू नीड दिस पिलो, टेबल और ये सब कुछ? देखो, अगर आप इडोमा का रिडक्शन कर रहे हो ना, तो आप उसको ऊपर एलिवेट करोगे और फिर अगर फीमेल पेशेंट है एंड यू हैव टू स्टिमुलेट द हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल, देन यू हैव टू कवर द लोअर लेग ऑल्सो. ओके. स्ट्रैप, सॉल्ट, पाउडर, सिजर, पेपर, ग्राफ पेपर. वाई ग्राफ पेपर? क्योंकि ग्राफ पेपर से ही तो आप प्लॉट करोगे ना एसडी कर्व को. जब फर्स्ट सेटिंग में अगर आप एसडी कर्व को नहीं प्लॉट करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही? ऑल ऑफ यू आर देयर? Yes, students. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. एंड लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर कोई ओपन वीन्स है, स्कार्स है, लोकल स्किन इन्फेक्शन है, कट्स है, एब्रेशंस, एक्जिमा है, लोकलस हेमरेजिक स्पॉट्स है. देन स्किन सेंसिटिविटी टेस्टिंग करोगे. क्या करोगे आप? पेशेंट्स की आई क्लोज करोगे, ऑल्टरनेट टचिंग करोगे पेशेंट को विद द नीडल, और जो ब्रश होता है ना, कौन सा ब्रश आपके पास? नी हैमर है ना? नी हैमर के पीछे अगर आप खोलो तो एक ब्रश सा होता है. यस और नो? यस स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. मैम नी है ना हैमर के बैकवर्ड तो पॉइंटेड होता है. बेटा? उसको खोलो नीचे तो एक ब्रश सा होता है नीचे. ओके मैम, देखना पड़ेगा. करो. इंस्ट्रक्ट द मैम पेशेंट अभी टू वो टेक. पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, तो ढूंढो निकालना फिर. पड़ेगा. ढूंढो ओके फिर. मैम. मैं ढूंढ के बताना मुझे है कि नहीं. दिस इज टू अब टेस्टिंग ऑफ द इक्विपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन. आपको पेशेंट को टेस्ट करना पड़ेगा इक्विपमेंट. अगर आप टेस्ट नहीं करते हो तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस आप नहीं ले पाओगे. Check for main input output by using the tester, looking for any frayed part, power cords, integrity of cables and electrons. Verify that all knobs, controls and the apparatus are zero. Connect the machine power cord to the mains and switch on the mains. Switch on the machine by turning on the power knob. Switch off the machine. Set the timer. Keep your index and middle finger on active and indefinite electrodes to check whether the machine is working or not. Demonstrate a muscle contraction to the patient by placing the electrode on the therapist's hand. Positioning of the patient. Place patient in a well-supported, comfortable and relaxed position. Use adequate pillows, towels and bed sheets. Expose the body part. Are you all there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No response is coming. Already enough have been taught to you this, right? Maybe because Yes. of that. Ma'am, this is common, ma'am, how to receive a patient. हाँ, सही बात है. पोजिशनिंग ऑफ द थेरेपिस्ट, स्किन रेजिस्टेंस लोअरिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, टर्मिनेशन, देन रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा रीजन किया, कौन सी टेक्निक यूज करी, कितना डोसेज किया, रिजल्टेंट इफेक्ट कितना आया. ओके ओके. देन वी कम टू फैराडिक फुट बाथ. Are you ready, Rohit? Yes, ma'am. If you are ready, then you can share. Like I Okay, will ma'am. go with specialized technique. Because we are only left with Faradic foot bath and Faradism under pressure. मैम हाँ जी. मैम मैंने हैमर का वो बोलो नीचे से निकाला. Ma'am, this is the machine. क्या किया आपने खुशबू? मैम हैमर जो आप बोल रहे थे ना कि उसके नीचे वो ब्रश टाइप होता है, बट मेरे इसमें तो नहीं है. आप खोल के दिखाओ मुझे पीछे वाला. मैम 1 मिनट. दिखाओ मुझे ऊपर करके. हमारे टाइम पे तो आता था. दिखाओ, हैमर ऊपर करो. नीचे से खुलता है कुछ?
खोलो इसको। खुलता नहीं है, रिंग टाइप नहीं है। खुशबू अनम्यूट योर सेल्फ, आई कांट हियर यू। ओ सॉरी सॉरी मैम, मैम इतना ही खुला है खोलो। मैम। ये लगा हुआ था इसमें और ये मैंने फिर खोला है तो फिर यही खुला है और नहीं खुल रहा है इसका, ये नहीं खुल रहा है। दिखाओ क्या क्या खुला है। था ये मैम कैसे, आपने क्या खोला है? मैम ये हैमर ना दिखाओ ऊपर का। अच्छा ठीक है, अब ये कहाँ से निकला पॉइंटेड वाला? ये इसके अंदर था, फिर मैंने इसे घुमा कर इसे निकाला है। अच्छा, ये इस जो पे आपका था रिंग, जो आपके 2 रिंग लगे हुए हैं ना, ये खुल सकते हैं क्या? मैम। एक मिनट ट्राई करती हूँ, ऐसे खुल तो नहीं रहा लास्ट था। वाला रिंग खुलेगा, ट्राई करती लास्ट हूँ। हाँ, वाला, लास्ट वाला रिंग खुलेगा। राइट लास्ट में दिवांश। प्रेस होता है। अच्छा एक मिनट मैम। मैम ये हाँ रिंग, रोहित दिखाओ। हाँ मैम ठीक है। ये दो चैनल वाले हैं और प्लेन और इंटरमिटेंट के लिए नॉब है, टेंस के लिए ये है, गैल्वेनिक पे है इस वक्त ये, और ये फैराडिक पे है, और ये 2 चैनल्स हैं। देखो अब, हाँ वापस दिखाओ, मशीन दिखाओ। वेरी नाइस। सब लोग ना रोहित को पिन कर दो और स्पॉटलाइट में भी डाल देती हूँ, सो ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू सी इट। ठीक है। ओके सो हाँ, अब फ्रीक्वेंसी दिखाओ बेटा। 2 हर्ट्ज टू 250 हर्ट्ज, इसका मतलब इट इज ओनली हैविंग अ लो फ्रीक्वेंसी करंट, तो इसमें खाली टेंस चल सकता है और फैराडिक और इंटरमिटेंट गैल्वानिक चल सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रोड दिखाओ, पेन इलेक्ट्रोड है आपके पास? यस मैम। एवरीबडी कैन सी दैट? Yes, यस ma'am. मैम। अच्छा, ये लिंट जो है ये आपने चढ़ाया है? ये जो लिंट चढ़ाया है पेन इलेक्ट्रोड के ऊपर? नो मैम। ये चढ़ के आया था? नहीं मैम, ये हेल्प ली थी सीनियर की। हाँ जी, मैम सीनियर की हेल्प से करा है। मतलब ये आपने चढ़ाया है ना? यस मैम, यस मैम, हेल्प लेके चढ़ाया है। हाँ ठीक है। अच्छा, आप इसको खोल के दिखा सकते हो ये दिखता कैसे है पेन इलेक्ट्रोड? यस मैम, मैम इसका ठीक है मैम, खोलता हूँ मैम अभी। ही हैज पुट इन वेरी गुड थिंग कि इसने लिंट लगाया है। हमारे बच्चे क्या करते थे, कॉटन लगा लेते थे, तो वो बड़ा करंट इज नॉट कंफर्टेबल। ऑलवेज पुट लिंट। सी, हाँ नीचे करो थोड़ा रोहित, नीचे करो बेटा। yes, this is how the pen electrode looks like. ठीक है। now you have to put 10 to 12 layers of lint on it and you have to tie that lint very very nicely onto the pen side of the electrode. ठीक है। then with this you need to have the distilled water in a small glass of small glass. ठीक है, small glass में थोड़ा सा पानी। as I had shown you in the earlier video also, it should not be too much of water. ठीक है। अब इसको कनेक्ट करो बेटा, मशीन के साथ कनेक्ट करो रोहित। ओके मैम। कहाँ पे ब्लैक करोगे, कहाँ पे रेड? आई वांट टू सी दैट। then you will be applying gel on the pad electrode or passive electrode, right? यस मैम, यस मैम। so you do okay, do first complete this much. You have ordered it from Amazon, is it? यस मैम।
खुशबू, the brush is open now. Yes, ma'am. Hmm. Ma'am, दिखाऊं? You people don't innovate on the things which you have. मैम वो ब्रश Yes. का यूज क्या है मैम, फिर से बता दो. What, Khushbu? What are you saying? दिखाओ दिखाओ. मैम Till the time yes, ma'am. Rohit is fixing it. This is Ma'am, the brush which is used. Hamad, can you see that brush, beta? You Yes, also ma'am. check in Yes, your. ma'am. बोलो खुशबू, आप क्या कह रहे थे? मैम उसका यूज फिर से बता दो. बेटा सेंसरी टेस्टिंग के लिए होता है बेटा. ब्रश से ना हम सेंसरी टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे. जैसे हम डर्मेटोम वाइज करते हैं ना, तो हम ब्रश Yes, से करते हैं. तो ओनली अ थेरेपिस्ट शुड हैव 2 devices in his or her pocket while they are going to the hospital. One is the different kinds of goniometer and a knee hammer. Knee hammer में सब कुछ आ जाता है. पिन भी आप कर सकते हो. पिन टेस्टिंग जो इन्होंने पहले निकाला था उसके ऊपर का पॉइंटेड था खुशबू का नी हैमर में. yes, yes, ma'am. हाँ, तो उसमें पिन सेंसेशन आप चेक कर सकते हो और इससे आप पेन सेंसेशन, सुपरफिशियल, डीप दोनों सेंसेशन हो गए. अगर दोनों सेंसेशन इंटैक्ट है तो पेशेंट इज वेल एंड गुड टू गो फॉर द ट्रीटमेंट. रोहित, वी आर वेटिंग फॉर यू. मैम Yes. Have you kept the machine? Beta, have you kept the machine on a table? Please don't keep it on a bed. Please keep it on a table, बच्चे. ओके मैम, ओके मैम. Ma'am, right. Now I've kept it on table. Yeah, very good. See, your one of your electrode is intervening with the other one. Keep them straight. कहीं Ma'am, पे कोई both रोल of नहीं them. होना चाहिए, एक के ऊपर दूसरा नहीं होना चाहिए बेटा. Ma'am, both the wires are not intersecting each other. They are kept separately. मुझे क्यों दिख रही है रेड के ऊपर ब्लैक है? ओके. मैम वो केबल है. ये देखो ना बेटा, ये केबल. हाँ, इसको भी पीछे की तरफ ले जाओ. हाँ, Ma'am, is it now okay? हाँ. नाउ इट इज परफेक्ट. ठीक है. चैनल 2 का इंटेंसिटी 0 पे है ना? मैम चैनल 1 का इंटेंसिटी 0 है. चैनल 2 भी 0 पे ही रखो. मैम 0 है मैम. ठीक है, And frequency वेरी is गुड. also. हाँ, ठीक है. अब आप क्या करो, आप क्या कौन सा टेस्ट करना चाहते हो?
इंटरमिटेंट गैल्वानिक या इंटरमिटेंट फैराडिक, सर्ज फैराडिक? मैम गैल्वेनिक वुड बी फाइन। इंटरमिटेंट गैल्वानिक, प्लेन नहीं, प्लेन तो बहुत तेज होगा। मैम इंटरमिटेंट इंटरमिटेंट गैल्वानिक कहाँ है? गैल्वानिक का ऑप्शन कहाँ है? नीचे है ना बेटा, उसको तो आपने फैराडिक पे रखा हुआ है। हाँ, गैल्वानिक पे रख दिया, ठीक है। सो दिस इज इंटरमिटेंट गैल्वानिक। वेयर हैव यू प्लेस द पैसिव इलेक्ट्रोड? पैसिव इलेक्ट्रोड कहाँ प्लेस किया बच्चे आपने? मैम वेट अ सेकंड। मैम पैसिव इलेक्ट्रोड लेटरल एपिकॉन्डाइल पे यहाँ पे आएगा। कर लो। हाँ ठीक है। मैम नहीं बिफोर दैट नहीं, आप अबडक्टर पॉलिसिस करना चाहते हो ना? यस मैम। अबडक्टर पॉलिसिस करना चाहते हो ना, तो यहीं पे रखो, छोटा करो, उसको छोटा करो, ज्यादा करंट क्यों लेना है? रिस्ट पे रख लो। हम रिस्ट पे रखूं? हाँ, रिस्ट पे रख लो। बट यू नो इट इज डिफिकल्ट कि आप अपने ऊपर ही करो और फिर इंटेंसिटी भी बढ़ाओ। डू यू हैव somebody टू हेल्प यू, रोहित? मैम कोई आएगा नहीं करंट के चक्कर में। दिवांश, कैन यू गो टू रोहित्स प्लेस? Ma'am, it's Ma'am, take 20 one thing minutes, 20 to 25 minutes. अच्छा, फिर तो नहीं हो सकता। Ma'am, we can do one thing that while बच्चे performing we आप can बेटा Ma'am, in next सुनो, class रोहित we मेरी can बात do. सुनो, रोहित मेरी बात सुनो बच्चे। आप गैल्वेनिक किया है और उधर प्लेन किया है, तो प्लेन गैल्वेनिक तो आपके लिए मुश्किल होगा, ये तो डीसी हो जाएगा। इसको इंटरमिटेंट गैल्वेनिक करो बेटा। Ma'am, right now it's on intermittent. दिखाओ फिर से। Intermittent, हाँ right, ठीक है। it's on plane. ठीक है। Ma'am, we can do in next class. ओके डन। Or we can, ma'am, one thing we can do is that while performing the experiment, we can shoot the video of it and send it to you so that you can inspect that video. शेयर We are इट। share it, हाँ, this is good. Okay, you do it among yourself and then send me the video. Okay, then Okay. I will be sharing it here, and then after sharing it, I will be telling you that what all things are need to be modified. Okay, ठीक है? ma'am. Okay, Okay, ma'am. you should practice for face अभी रहने दो, अभी लोअर लिमिट करो। Let me show you some videos for the face. ठीक है? बट फेस में हमेशा यू नो सर्च फैराडिक से ही करते हैं, क्योंकि फेस में जनरली, सॉरी, इंटरमिटेंट गैल्वेनिक से ही करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो नर्व होता है दैट इज नॉट गिविंग दी सप्लाई। तो सर्च फैराडिक से नहीं करते, क्योंकि डिनर्वेटेड मसल में आप नहीं कर सकते ना। यस और नो? यस स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I think today you enjoyed the class. Yes. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very few of you are replying. What happened? मैम आप जब कॉलेज खुलेंगे, ओपन होंगे मैम, हमें सारी चीजें सिखाएंगे ना मैम आप? क्यों नहीं सिखाऊंगी? अल्ट्रासाउंड, SWD, हर चीज मैम। हाँ, ओके मैम। इतना घबरा क्यों रहे हो? घबरा नहीं रहा। सब सिखाऊंगी, बस ये है कि इलेक्ट्रोथेरेपी लैब को साफ सुथरा रखना आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई कैन Ma'am, टेक it's यू इन एवरी। all, ma'am, यस, half of the course is complete and still we are not aware of many मैम वो things. अभी तक साफ ही है मैम, हमारा आधा कोर्स पूरा हो गया मैम, इलेक्ट्रोथेरेपी लैब साफ ही है अभी तक। क्या है? साफ ही है? नहीं नहीं नहीं, मतलब क्लीन ही है मैम, अभी इलेक्ट्रोथेरेपी तक हम गए लैब। नहीं है ना मैम, हाफ कोर्स कंप्लीट हो गया हमारा, वो क्लीन ही है अभी तक। कहाँ, अभी तो मैं लो फ्रीक्वेंसी पे ही हूँ। अभी मीडियम आएगी, हाई आएगी, एडवांस पैरामीटर आएंगे, अभी तो बहुत कुछ आएगा। डोंट वरी।
those who stay together, एक रोहित के घर जाके can practice. Yes, Divansh and Rohit can do, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Anything else? So I think we should wind up today. Yes, or we should Yes, go Yes, with ma'am. the ma'am. Faradic foot bath. Shall we? Because I think already so much has been covered. Yes. By Monday we should go Faradic footpath. Okay. Ma'am, please